Very good morning, students. How are you all? I hope you are regularly going through your chapters, the lessons which have been sent to you by the school. Keep reading again and again so that it becomes easy for you to understand. In our social science class, we have started geography first chapter, resources. And up till now, we have learnt about what is a resource, classification of resources, causes of depletion of resources, what is sustainable development, very important topic. And in the last class, we have read about what is resource planning and how resource planning is done in India. The 3 steps through which resource planning is done, and the importance of technology. It means that only having resource is not sufficient. Along with resource, we also require corresponding technology so that we can use that resource. तो हमने जो अभी तक लेसन पढ़ा है वो यहाँ तक है. Start making your notes also, short questions, lengthy questions. Okay? Now starting with today's topic, that is conservation of resources. In short, I'll tell you about this. Why we need to conserve resources. As you all know, resources are very important for any development activity. In the absence of resource, no development is possible. But what had happened? Irrational consumption and overutilization, underline karo in dono words ko, irrational consumption and overutilization of resources had led to socio-economic and environmental problems. बिना सोचे समझे जो हम resources को use कर रहे हैं and overutilization, ज़रूरत से ज़्यादा use कर रहे हैं. So what had happened? So many problems have risen. Pollution, environment degradation, global warming, ये सारी problems इसी वजह से आ रही हैं. So to overcome these problems, resource conservation at various levels is important. हर level पर resource, हम ये नहीं कह सकते oh it's the responsibility of the government to conserve resources. No, it's each and everyone's responsibility to conserve resource. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. और ये सिर्फ आज की problem नहीं है. For the last 1 or 2 centuries, the thinkers, the philosophers, the great leaders, they have showed their concern time to time that we need to conserve resources. For example, Gandhiji was very correct in voicing his concern about resource conservation. So what did Gandhiji say? आप लोगों ने ये बहुत बार हमारे यहाँ thought में भी सुना होगा. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. है ना, very famous lines, स्कूल में thought भी हो चुका है 1-2 बार. क्या है? There is enough for everybody's need. अर्थ पर, नेचर के पास सबकी नीड पूरी करने के लिए बहुत कुछ सफिशिएंट है. हाँ, नीड का मतलब समझते हो ना, ज़रूरत. ज़रूरत जो होती है हमारी वो एक अलग चीज़ होती है. एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. I hope you understand the meaning of these 2 words. Need and greed. Very big difference. Need पूरी करने के लिए तो अर्थ के पास सब कुछ है. But greed cannot be fulfilled. तो nature can fulfill everybody's need. But it cannot fulfill even one person's greed. Because greed never ends. So these are the most important lines as said by Gandhiji. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion. So according to Gandhiji,
What was the main cause of resource depletion? The greedy and selfish individuals, we human beings. सबसे ज़्यादा नेचर को नुकसान ही किसने पहुंचाया है बच्चों? ह्यूमन बींग्स ने. तो ये जो हमारा ग्रीडी और सेल्फिश नेचर है ना, एवरीथिंग मुझे चाहिए, मेरे लिए, ये जो है, जबकि अर्थ पर, नेचर पर, अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग्स और लाइफ भी तो एग्जिस्ट करती है. प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, सबका बराबर का हक है. लेकिन ये जो हमारा ग्रीडी नेचर है, इसने ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कॉज किया है. एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगेन अंडरलाइन दीज, द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आज जो हम टेक्नोलॉजी पर इतना प्राउड फील करते हैं, ओ मॉडर्न मैन, हाँ, सो मच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हम तो टेक्निक के मास्टर्स हैं. अरे इस टेक्निक ने ही तो हमारे रिसोर्सेज ख़त्म किए हैं और हमारे नेचर को इतना डिस्ट्रॉय किया है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी भले ही हमारी लाइफ को हेल्प कर रही है, बट इन द लॉन्ग रन नुकसान पहुंचा रही है. तो ये दो कारण हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जिसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीशन हुआ है. ही वॉज अगेंस्ट mass production. Again, you need to understand the meaning of these two words. Gandhiji was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. दोनों का मतलब समझे, mass production and production by the masses. mass production का मतलब होता है थोक में कोई चीज़ प्रोड्यूस करना. गांधी जी वॉज अगेंस्ट इट, क्योंकि थोक में कोई भी चीज़ किससे प्रोड्यूस होती है? मशीन से. ह्यूमन हैंड्स नहीं कर रहे हैं कुछ भी, दे आर जस्ट ऑपरेटिंग. बाकी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? मशीन. मशीन को काम की ज़रूरत नहीं है, काम की ज़रूरत किसको है? ह्यूमन हैंड्स को. एंड दैट कैन बी डन बाय प्रोडक्शन बाय द मासेस, जिसमें मशीन का, टेक्नोलॉजी का यूज़ कम से कम हो और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा उसमें काम करे. सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन and he was for production by the masses. So this is why do we need to conserve resources. Coming up to our next topic, that is land resource. So now general हमारा introduction ख़त्म हुआ बच्चों about resources. Now we will start one by one learning about various resources. And as you know, the most important resource is land resource. क्योंकि लैंड है तभी तो बाकी रिसोर्सेज हैं. तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक लैंड रिसोर्स. वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ ऑन लैंड इन डिफरेंट वेज. सो अंडरलाइन करो, लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance, highest importance, because in the absence of land no other resources are possible, because it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, everything. So it's very important. Land is an asset of a finite magnitude. Finite means limited. हमारे पास limited amount में land present है. Therefore it's important to use the available land for various purpose with careful planning. तो जो भी लैंड अवेलेबल है हमें उसे बहुत सोच समझ कर यूज़ में लेना है, क्योंकि अर्थ पर, टोटल अर्थ पर लैंड बहुत कम है. और जो कम है वो पता है कि सिर्फ कितना है, 21% इज़ लैंड एंड 78% इज़ वाटर. तो जो भी लैंड है उसे सोच समझ के काम में लेना है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट इंडिया का लैंड. What is the total land area of India? You all know that. बताओ कितना है टोटल लैंड एरिया इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. याद है ना? ये फिगर याद रखना बहुत अच्छे से. सो अब ये जो टोटल हमारे पास लैंड है ये किस किस में डिवाइडेड है? देखो, इंडिया हैज़ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन्स, समतल जगह. टोटल इंडिया का लैंड है उसका 43% इज प्लेन्स, वेयर वी डू एग्रीकल्चर, वेयर वी लिव, है ना, वेयर वी हैव आवर इंडस्ट्रीज. दिस इज 43%.
माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया. माउंटेन्स कितनी जगह पर हैं? 30% लैंड इज माउंटेनियस, इंक्लूडिंग हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, विंध्याचल, सतपुड़ा, इतनी सारी जो रेंजेस हैं हमारे राजस्थान की, अरावली रेंजेस एंड ऑल, ये सब मिलाकर टोटल कितना होता है बच्चों? 30% लैंड. जहाँ से स्टार्ट होती हैं हमारी रिवर्स, we go for tourism etc. And about 27% of the area is plateau region, Deccan plateau specially. सारा जो हमने लास्ट ईयर फिजिकल फीचर्स में पढ़ा था, ये सारा मिलाकर बनता है हमारा टोटल लैंड एरिया. कितना कितना हुआ? 43% ऑफ द लैंड इज प्लेन्स, 30% ऑफ द लैंड इज माउंटेन एंड 27% ऑफ द लैंड इज प्लेटो रीजन, जहाँ से हमें ज़्यादातर मिनरल्स मिलते हैं. सो दिस इज़ द टोटल लैंड एरिया दैट वी हैव इन इंडिया. नाउ द वेरियस यूजेस अंडर विच लैंड इज पुट, दैट इज़ नोन एज लैंड यूटिलाइजेशन. ये एक जनरल व्यू है. अभी हम पहले एक बार जनरल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंडिया का पढ़ेंगे. लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, आई एम सॉरी, जनरल. पहले हम पढ़ेंगे जनरल लैंड यूटिलाइजेशन, किस किस काम में लैंड आता है. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस. सबसे पहला पर्पस क्या है लैंड यूटिलाइजेशन का? ऑफ कोर्स नेचर का हक पहले है. सो सबसे पहले आते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि सारे पेड़ किस पर लगेंगे? लैंड पर. तो पहला यूटिलाइजेशन हुआ फॉरेस्ट. सेकेंड यूटिलाइजेशन है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पर खेती नहीं हो रही है. तो उसमें क्या आता है? बैरन लैंड, बंजर ज़मीन, वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जहाँ हमारी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, आपका घर है, मेरा घर है, हमारा स्कूल है, हाँ, ये सब कहाँ बना हुआ है? लैंड पर ही तो है. सो दिस इज़ नेक्स्ट यूटिलाइजेशन. थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड. अभी हम फेलो लैंड का मीनिंग बाद में समझेंगे, पर पहले ये अनकल्टिवेटेड लैंड किस किस यूज़ में आ रहा है? परमानेंट पास्चर्स, वेयर आर एनिमल्स ग्रेज, ग्रेजिंग लैंड. सेकेंड है मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रो. देखो, क्रॉप एक अलग चीज़ है फील्ड पर, लेकिन जो ट्रीज़ हैं जहाँ हर साल हम जिनसे क्रॉप लेते हैं, लेकिन वो ट्रीज़ परमानेंटली लैंड पर खड़े हुए हैं, वो सारा एरिया आता है. एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिस पर 5 साल से ज़्यादा समय से कोई खेती नहीं हुई है, तो एक तरह से वो भी बैरन या वेस्ट लैंड है. अब आता है फेलो लैंड. क्या होता है फेलो लैंड? फेलो लैंड एक्चुअली में वो लैंड है जिस पर हर साल क्रॉपिंग नहीं होती है, हर साल एग्रीकल्चर नहीं होता है. फेलो लैंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. करंट फेलो, दैट इज विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर. हम ये कह सकते हैं एक साल क्रॉपिंग होती है, एक साल नहीं होती है. इट्स लेफ्ट ओपन टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी. फिर एक साल उस पर एग्रीकल्चर किया, फिर एक साल उसको छोड़ दिया. तो ये 1 ईयर एग्रीकल्चर, 1 ईयर नो एग्रीकल्चर, ये एक जो होता है एक एक ईयर का, दिस लैंड इज नोन एज फेलो लैंड. सेकेंड या करंट फेलो. सेकेंड है अदर देन करंट फेलो. अदर देन करंट फेलो इज दैट लैंड जहाँ पर मोर देन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या 5 ईयर्स छोड़कर क्रॉपिंग होती है. मान लो अभी इस साल उस लैंड पर क्रॉप ग्रो हुआ, काट लिया हमने क्रॉप, देन इट विल बी लेफ्ट ओपन फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2-3 साल उस पर क्रॉप नहीं लगेगा. देन अगेन आफ्टर 2-3 ईयर्स उस पर एक साल क्रॉप लिया जाएगा, देन इट विल बी लेफ्ट ओपन फॉर 2-3 ईयर्स. तो ये क्या कहलाएगा? अदर देन करंट फेलो. तो करंट फेलो 1 ईयर क्रॉप, 1 ईयर नो क्रॉप. अदर देन करंट फेलो 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स के गैप में एक साल जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है. तो फेलो लैंड एग्रीकल्चर तो होता है बट आफ्टर फ्यू ईयर्स. और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है किसी भी लैंड का, दैट इज नेट सोन एरिया.
व्हाट इज सोन एरिया? एक्चुअली में वो लैंड जिस पर क्रॉप लगता है. व्हेन यू ट्रेवल ऑन द रोड्स एंड हाईवेज, सड़क के दोनों तरफ क्या दिखते हैं बच्चों? खेत, जहाँ पर एक्चुअली में क्रॉप हो रहा है, फील्ड्स ग्रोइंग क्रॉप्स. वो जो लैंड है दैट इज नोन एज सोन एरिया. है समझ में? जिस पर, और सारे लैंड जिस पर क्रॉप हो रहा है दैट इज सोन एरिया. और जब हम इस, और आपने एक चीज़ और पढ़ी थी 9th में, मल्टीपल क्रॉपिंग. इन अ ईयर ऑन द सेम लैंड 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन. एक कटेगा, रबी का होगा, खरीफ का होगा, ठीक है, ऐसे साल में 2-3 क्रॉप्स लिए जाते हैं. तो लैंड एक बार जो काउंट होगा वो तो है नेट सोन एरिया, जो हम टोटल कर रहे हैं. और जब ये हम रिपीट करेंगे, टोटल हम साल भर का देखेंगे कि कितने लैंड पर क्रॉप ग्रो हो रहा है, दैट इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. जिस पर हम साल में 2 या 3 बार क्रॉप लेते हैं तो वो वैसे काउंट होगा. तो दैट इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. मोर देन वंस, एक ही लैंड पर हम मोर देन वंस क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ना, तो दैट विल बी नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. तो दीज वर द वेरियस यूजेस ऑफ लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये हमने जनरल लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा बच्चों, ठीक है. सो आज तक के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया. ये जो हमने ऊपर अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ा है ना लैंड यूटिलाइजेशन का, कि वो लैंड कैसे कैसे यूज़ में लिया जाता है, इसी को हम अब इंडिया पर देखेंगे. कितना % फॉरेस्ट है, कितना % नेट सोन एरिया है, कहाँ पर वेस्ट लैंड है, कितने पास्चर लैंड है, कितना % फेलो लैंड है. ये सारा हम अब आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. तो दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप रीडिंग.